ہے اور کل بھی غوث اعظم کا فیض و کرم جاری تھا اور قیامت تک غوث اعظم کا فیض و کرم جاری رہے گا۔ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، بغداد کا ایک میدان ہے، اس میدان میں بڑی بھیڑ بھاڑ ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیسی بھیڑ بھاڑ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عراق کا ایک بہت بڑا مشہور ڈاکو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آج اس ڈاکو کو پھانسی دی جا رہی ہے، وہ سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، پھانسی کا پھندا لٹکا دیا گیا ہے اس کی گردن میں۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم ٹھہر گئے، سارے لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں، اسے پھانسی کے تختے پر چڑھایا جاتا ہے اور پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال کر کے جیسے انتظار کیا جاتا ہے کہ اب پھانسی کا پھندا کھینچا جائے گا، اب اس کو سولی دے دی جائے گی، وہ ایک نگاہ پورے مجمع پر ڈالتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ اسی طور پر اس کی نگاہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر کے چہرے پر بھی پڑ گئی اور غوث پاک کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑ گئی، پھانسی کا پھندا کھینچ لیا گیا، اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی، لاش وارثوں کے حوالہ کر دی گئی۔ جب اس کو دفن کر دیا گیا تو جس قاضی نے حکم دیا تھا اس کو پھانسی کے لیے، اسی نے خواب دیکھا کہ وہی ڈاکو جس کو میں نے پھانسی دلوائی ہے وہ تو جنت میں جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، اس نے سلام کیا پلٹ کر، کہا قاضی صاحب میں اپنے گناہ اور بدعمالیوں کی بنیاد پر تو جہنم ہی کا مستحق تھا، مگر اللہ کی رحمت کام کر گئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب مجھے پھانسی دیا جا رہا تھا تو اسی مجمع میں نے نگاہ دوڑائی، بڑے پیر سیدنا غوث اعظم ادھر سے جا رہے تھے، ان کے چہرے پر میری نگاہ پڑ گئی۔ جب فرشتے آئے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عذاب کے فرشتے دور ہو جاؤ اور رحمت کے فرشتے میرے اس بندے کی روح کو تم لے لو، اس لیے کہ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا بندہ دنیا سے آخری بار میرے محبوب بندے عبد القادر کا چہرہ دیکھ لے رہا ہے، تو میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ جس کی نگاہ عبد القادر کے چہرے پر پڑ جائے اسے میں عذاب دوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے عبد القادر کے صدقہ میں اس کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ غوث اعظم بڑے پیر ہیں، اب سرکار غوث اعظم کی وہ حالت ہو گئی ہے کہ سرکار غوث پاک زمین پر چل رہے ہیں مگر آپ کے بھی قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، آپ بولنے لگے تو آپ کی زبان میں کوئی لغزش نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک پڑھنے کے لیے گئے، بڑے پیر دستگیر پڑھتے رہے، 17 یا 18 برس کی عمر شریف ہو جاتی ہے آپ پہلی بار جب مدرسہ میں داخل کیے گئے، آپ کے والد گرامی لے کر کے گئے استاذ کے سامنے اور بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے بیٹھے۔ استاذ نے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد مختلف روایتیں آئی ہیں کہ سرکار غوث پاک نے قرآن شریف کے 18 پارے وہیں پڑھتے چلے گئے۔ استاذ حیران رہ گئے، کہا عبد القادر تم مجھے پڑھانے آئے ہو کہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، اور آگے پڑھو۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجھ کو صرف اتنے ہی یاد ہیں، میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی، وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی، میں نے سن کر کے یاد کر لیا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسہ میں پہنچتا تو میرے استاذ مجھ کو بلاتے اور کہتے صحیح صحیح عبد القادر تم بتاؤ تم انسان ہو کہ جنون ہو؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں ہنس پڑتا، مجھے ہنسی آ جاتی اور میں اپنے استاذ سے کہتا نہیں میں انسان ہی ہوں، میں پیدا ہوا ہوں، میرے باپ یہ ہیں، میری ماں ہیں، میرا یہ خاندان ہے۔ ایک روز سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے مدرسے میں جیسے ہی گیا تب تک غیب سے ایک آواز آتی ہے، اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے راستہ خالی کر دو، جگہ دے دو۔ آواز تو سنائی دیتی تھی لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا، میرے لیے جگہ خالی کر دی جاتی تھی، تب میں نے جان لیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں مدرسے سے چلا آ رہا تھا کہ ایک گائے جا رہی تھی، بچے بھی جا رہے تھے، بچپن کے کھیل کود کا ماحول ہوتا ہے۔ سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ بچے کھیل کود رہے تھے، میرا بھی ذوق بڑھا، میں آگے بڑھ کر کے اس گائے کے دم کو پکڑ لیا، جیسے گائے کے دم کو پکڑا تب تک گائے گھوم پڑی اور اس نے میرا نام لے کر کے جیسے کوئی انسان بولتا ہے ایسے بولنے لگی، کہا اے عبد القادر تم کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں اس گائے سے انسان کی طرح سے اس طرح آواز سن کر کے میں کچھ خشیت محسوس کیا، اپنے اوپر کچھ خوف محسوس کیا اور بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں کی گود میں بیٹھ گیا۔ ماں نے مجھ کو گھبراتے ہوئے دیکھا، پوچھا بیٹا عبد القادر کیا بات ہے؟ تو میں نے ماں سے سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ ماں نے میری پیشانی کو چوم لیا اور دعائیں دینے لگی۔ یہ سرکار پیر امیر میرا غوث اعظم ہیں کہ بچپن میں ان کے لیے آواز آ رہی ہے عبد القادر تمہیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، اے اللہ کے نیک بندو، اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے راستہ دے دو۔ جب یہ مکتب میں جا رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں میں جدھر سے جاتا لوگ مجھ کو دیکھتے تو دیکھتے رہ جایا کرتے تھے۔ عمر کا حصہ اس طرح سے گزرتا چلا جا رہا ہے، والد گرامی کا انتقال ہو گیا، 17 یا 18 برس کی عمر سرکار غوث پاک
बगदाद की हो गई, माँ की खिदमत कर रहे हैं सरकार गौस पाक। एक रोज आपने अपने दिल में सोचा कि मैंने सुना था कि मुझको एक जानवर ने कहा था, अब्दुल कादिर तुमको इसके लिए नहीं पैदा किया गया है, लिहाजा मुझे खिदमत दीन के लिए पैदा किया गया है, और खिदमत दीन बिला इल्म दीन हासिल किए हुए ठीक तौर से कोई कर नहीं सकता है, इसलिए मुझे इल्म दीन हासिल करना चाहिए। अपने माँ के पास आए और माँ के पास आने के बाद अर्ज करते हैं, अम्मी। माँ ने कहा, हाँ बेटा। आप अर्ज करते, अम्मी जान मेरी तबीयत ये चाहती है कि मैं इल्म दीन हासिल कर लूं, इसलिए मुझे आप पढ़ने की इजाजत दे दें। माँ ने फरमाया, बेटा अगर इल्म दीन हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ने के लिए मेरी तरफ से इजाजत है। सरकार गौसे आजम अब सोचने लगे, मैं कहाँ इल्म दीन हासिल करने जाऊं। उस वक्त बगदाद और निशापुर ये दो ऐसे शहर थे जो इल्म दीन के मरकज माने जाते थे, लेकिन इन दोनों शहरों में सबसे अजीम शहर और इल्मी माहौल से बगदाद की सरजमीन है। सरकार गौसे आजम ने इरादा फरमा लिया कि मुझे बगदाद जाना है और बगदाद में जाकर के इल्म दीन हासिल करना। सरकार गौसे आजम ने माँ से इजाजत ले ली है। माँ ने इजाजत दे दी, बेटा ठीक है, हम तुम्हें इजाजत दे रही है, हम जाओ इल्म दीन हासिल करने के लिए। सरकार गौसे आजम ने देखा कि एक तिजारती काफिला बगदाद की तरफ जा रहा है। उसी तिजारती काफिला के साथ चलने के लिए बड़े पीर दस्तगीर तैयार हो गए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर जब तैयार हो गए तो माँ ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर इधर आओ। अपने माँ के पास गए। माँ ने कहा, ये 40 दीनार हैं, ले लो, तुम्हारे बाप के तरके से 80 दीनार मुझे मिले हैं, तो 40 तो तुम्हारे भाई अहमद के लिए हैं और ये 40 तुम्हारे लिए हैं। आपने फरमाया, अम्मी जान इसको महफूज जगह पर कर दीजिए। चुनांचे आपकी सदरी में, आपके एबा में आपकी माँ ने उन 40 दीनार को रख करके एक थैली बना करके उसमें सिल दिया। सरकार गौसे आजम ने उसको जेबतन फरमा लिया और जेबतन करके अब उस तिजारती काफिला के साथ चलने लगे। माँ के कदम का बोसा लिया, माँ को सलाम किया। माँ ने दुआओं की छांव में अपने शहजादे को रुखसत किया। वक्त का गौस इल्म दीन हासिल करने के लिए आबादी से बाहर निकल रहा है, और जब आबादी से बाहर निकलने लगे तो माँ ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर एक वसीयत मैं तुमसे करती हूँ। माँ, कौन सी वसीयत है? बेटा एक वसीयत हमारी सुनते जाओ। आप फरमाते हैं, अम्मी जान बताओ कौन सी वसीयत है? माँ ने अपने बेटे की पेशानी का बोसा लेते हुए कहा, बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ ना बोलना। माँ वसीयत कर रही हैं, बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ ना बोल। सरकार गौस पाक अपनी माँ से वादा कर रहे हैं, तिजारती काफिला के साथ चले जा रहे हैं। तिजारती काफिला बगदाद की तरफ चला जा रहा है। हमदान का जंगल पड़ा और हमदान के जंगल से पार होकर के जब पहाड़ी इलाकों में तिजारती काफिला चलने लगा तो 60 डाकू निकल आए। वो डकैती किया करते थे, रास्ते पर रह के तिजारती काफिला को लूट लिया करते थे। एक बार उन डाकुओं ने हमला कर दिया, तिजारत के माल को लूटा, कुछ लोगों को जख्मी किया। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की उम्र शरीफ 17 या 18 बरस की है। एक डाकू आया, उसने कहा, मियां बेटे तुम्हारे पास भी कुछ है? आप फरमाते हैं हाँ। क्या कहा? 40 दीनार। आगे बढ़ गया, लूट लाट करके जब ये पूरा काफिला इकट्ठा हुआ, बात चलने लगी तो किसी ने कह दिया कि पूरे काफिले में एक बच्चा ऐसा मिला कि मैंने उससे पूछा तुम्हारे पास भी कुछ है? तो उसने कहा हाँ 40 दीनार। डाकुओं का सरदार बोल पड़ा, वो कौन सा बच्चा है, तुमने उसको छोड़ दिया? तब तक उसने निगाह उठाई, कहा वो देखो जो दूर खड़ा दिखाई दे रहा है हसीन खूबसूरत बच्चा, वही बच्चा है जिससे मैंने पूछा था। कहा जरा बुला लाओ उसको। डाकुओं के सरदार ने अपने साथी को भेजा। यही सरकार गौसे आजम हैं, बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम तकरीर फरमा रहे थे अपनी खानकाह में। 70,000 का मजमा था। बारिश आ गई। सरकार गौसे आजम रब की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, मेरे मौला मैं तेरे जिक्र के लिए तेरे बंदों को इकट्ठा कर रहा हूँ और इलाहुल आलमीन तू बिखेर रहा है। मौला ने अपने महबूब बंदे अब्दुल कादिर की दुआ को कबूल फरमा लिया। इर्द गिर्द तो बारिश होती रही मगर सरकार गौस पाक की खानकाह से बारिश बंद हो गए। सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा की तरफ इशारा करते हुए उस डाकू ने कहा वो बच्चा खड़ा हुआ है। चुनांचे डाकुओं ने अपने एक साथी को भेजा, जाओ बच्चे को बुला लाओ। सरकार गौस पाक के करीब गया, उसने कहा चलो हमारा सरदार तुम्हें बुलाता है। बड़े पीर दस्तगीर सामने आए, उसने सरकार गौस पाक का चेहरा देखा, बड़ा हसीनो जमील चेहरा है, बड़ा अच्छा चेहरा दिखाई दे रहा है। कहा बेटा तुम्हारे पास कुछ है? आपने फरमाया हाँ मेरे पास 40 दीनार हैं। कहा कहाँ है 40 दीनार? आपने फरमाया मेरी एबा में है। कहा एबा को उतारो। चुनांचे आपने अपनी सदरी को उतार दिया और सदरी के सीवन को तोड़ा गया तो उसमें से 40 दीनार जमीन पर गिर पड़े। डाकू ने पूछा, कहा लोग तो चोरों से अपने माल को छुपाया करते हैं, बेटा तुमने अपने माल को क्यों नहीं छुपा लिया? अगर तुम छुपाते तो तुम्हारा माल बच जाता। तो आप फरमाते हैं कि मेरी माँ ने जब मुझे रुखसत किया था तो वसीयत की थी कि अब्दुल कादिर कभी झूठ ना बोलना। अगर मैं कह देता मेरे पास
पास माल नहीं है तो झूठ हो जाता, मैंने अपने माँ से वादा किया था। इस जुमले को बड़े पीर ने ऐसे अंदाज से अदा किया कि डाकू के हाथ से तलवार छूट जाती है। उसने कहा, बेटा आप अपना हाथ सामने बढ़ाओ और मुझे तौबा करा लो। तुमने तो अपनी माँ से वादा किया है, माँ का वादा तुम्हें याद है, और मैंने अपने रब से वादा किया था, मैं अपने रब के वादा को तोड़ चुका हूँ। मेरे मौला मुझे माफ कर दे। इलाही मैं चोरी नहीं करूंगा, माफ कर दे। मौला मैं गुनाह नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ये पहली जमात चोरों की है जो मेरे हाथ पर ताइब होकर के साले बन जाती है। और अल्लाह के वो ऐसे नेक बंदे बने कि अल्लाह ताला ने उनकी नेकियों को कबूल फरमा लिया और वलियों में उनका भी शुमार होने लगा। ये सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा हैं। सरकार गौसे आजम बगदाद पहुंच गए, मदरसे निजामिया में दाखिला लिया। उस वक्त तक मतबख का इंतजाम मदरसों में नहीं होता था। लोग अपने तौर पर अपने खाने पीने का इंतजाम रखते थे और इल्म दीन हासिल करते थे। सरकार गौसे आजम जब मदरसे निजामिया में दाखिला लेकर के पढ़ना शुरू करते हैं तो आप इतने ज़हीन थे कि चंद दिनों के बाद सारे असातिज़ा आपसे मोहब्बत करने लगे, इतनी मोहब्बत करने लगे, इतनी मोहब्बत करने लगे कि बड़ी दिलजमई के साथ आपको इल्म दीन देने लगे और आपकी तालीम का ख्याल करने लगे। हजरत हम्माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही बड़े मुहद्दिस और मुफक्किर, बहुत बड़े आलिम दीन और बहुत अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं। आप अपनी शागिर्दी में सरकार गौसे आजम को पाकर के बहुत खुश हुए। हजरत सईद मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन सरकार गौसे आजम के असातिज़ा में से हैं। 8 साल तक सरकार गौसे आजम बगदाद में पढ़ते हैं। इस 8 साल के अंदर अंदर सरकार गौस पाक फरमाते हैं लेकिन मुझको बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कई कई रोज का अरसा गुजर जाता था मुझे फाका करते हुए, फाके से मेरी जिंदगी गुजरती थी। बड़े पीर फरमाते हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि जब खाने के लिए कुछ नहीं रह जाता था तो दरख्त के पत्तों को तोड़ करके खाता था और उसके बाद इल्म दीन में मैं हासिल करने में लग जाया करता था। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुझको इतनी भूख लगी कि खाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने किसी के सामने हाथ फैलाना मुनासिब नहीं समझा तो आप फरमाते हैं मैं खंडरात की तरफ निकल गया कि उधर अगर कोई गिरी पड़ी चीज मबाह मिल जाए तो मैं उसको उठाकर खा लूं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मैं जब उधर गया तो मैं देखता क्या हूं कि हमसे पहले उधर 70 फकरा खाने पीने की चीजों को तलाश रहे हैं, वो भी भूख चिल्ला रहे हैं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मैं वापस आ गया और वापस आने के बाद मस्जिद में चला गया, नमाज पढ़ने लगा। गौस पाक फरमाते हैं जब मैं सजदा करता था तो पेट से एक ऐसी आवाज निकलती थी भूख भूख। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ता रहा और नमाज पढ़ करके जब मैं बैठा तो देखता क्या हूं कि मस्जिद में एक मुसाफिर आया और आने के बाद वो मुसाफिर अपने झोले से कुछ निकाला और खाने लगा। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मेरे दिल में ये बात जमी कि काश ये खाने वाला आदमी मुझे भी अपने खाने में शामिल कर लेता तो मैं भी आज शरीक हो जाता। इतना सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल में सोचा कि तब तक उस आदमी ने कहा आओ बेटे तुम भी शरीक हो जाओ खाने में। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा और मैं भी बैठ करके खाना खाने लगा। जब मैं खाना खाने लगा तो उस मुसाफिर ने पूछा कि कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा मैं मदरसे निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा अच्छा मदरसे निजामिया में पढ़ते हो? हाँ। उस मुसाफिर ने कहा ये बताओ कि मैं आया हूँ कस्बा नीफ गीलान की तरफ से, इस मदरसे निजामिया में एक सादात घराने से अब्दुल कादिर नाम करके आए हुए हैं, एक तालिब इल्म, क्या तुम उनको जानते हो? तो कहते हैं मैंने कहा किस लिए तुम उनको पूछ रहे हो? कहा जब मैं चलने लगा था तो उनकी मां ने मुझको थोड़ा सा सोना दिया था और कहा था मेरा बेटा बगदाद मदरसे निजामिया में पढ़ रहा है, ये सोना मेरे बच्चे को पहुंचा दीजिएगा उसके अखराजात के लिए। चुनांचे मैं आया, मेरे खाने पीने का सामान खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं रह गया था तो मैंने उसी सोने में से थोड़ा सा सोना बेच दिया और ये खाने की चीज खरीदी, यही खा रहा हूँ और थोड़ा सा सोना मेरे पास बच गया है, मैं उनको देना चाहता हूँ। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि मैंने कहा अच्छा खाना खा लीजिए तो मैं बता देता हूँ। जब खाना खा चुके तो बड़े पीर फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर का पता तुम पूछ रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ, उसने मेरी पेशानी का बोसा ले लिया। अब जरा सरकार गौस आजम
आजम को देखो, सरकार गौस आजम का दिल अगर माइल होता है तो उस खाने की तरफ माइल होता है जो उन्हीं के रकम से खरीदा हुआ खाना है, किसी और का खाना नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे सरकार गौस आजम की किस किस तरह से हिफाजत फरमाई है। सरकार गौस आजम फरमाते हैं, मैं 8 साल तक बड़ी मेहनत और मशक्कत से इल्म हासिल करता रहा, और जब सरकार गौस आजम पढ़ करके फारिग हुए, अल्लाह अकबर, तो इतना मजबूत इल्म था कि सरकार गौस आजम को चंद ही दिन के बाद इराक का मुफ्ती आजम कहा जाने लगा। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, जब मैं पढ़ करके फारिग हो गया तो इबादत और रियाजत और मुजाहिदा के लिए मैं निकल पड़ा। इराक के जंगलों में मैं घूमता रहा, चलता रहा। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, 12 बरस तक मैं दौड़ता रहा। नमाज का वक्त होता तो रुक करके नमाज पढ़ लिया करते, बकिया जंगलों में दौड़ते रहते थे। सरकार गौस आजम ने अहद कर लिया कि जब तक मेरा रब नहीं मुझे खिलाए पिलाएगा तब तक अब्दुल कादिर के मुंह में एक लुकमा भी नहीं जा सकता है। गौस पाक फरमाते हैं कि इतनी भूख की शिद्दत थी कि मैं पड़ा हुआ था, तब तक एक साहब आए और आने के बाद कहने लगे, उठो अब्दुल कादिर खा लो। मैंने कहा नहीं, जब तक मेरा रब मुझे नहीं खिलाएगा मैं खाऊं पीऊंगा नहीं। एक बुजुर्ग हजरत सईद मखसूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आए और आप फरमाते हैं, अब्दुल कादिर उठो। सरकार गौस आजम को उठाया जा रहा है और आप फरमाते हैं, अब्दुल कादिर ये ले लो, ये रब ताला तुम्हें अता फरमा रहा है। तो सरकार गौस आजम ने लिया और खाना शुरू फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह, वो सरकार गौस आजम हैं हजरत अबू सईद मखसूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सरकार गौस आजम को अपने घर लाए और लाने के बाद अपनी दस्तार देते हैं और अपनी एबा पहना देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, बेटा अब्दुल कादिर लो, जो अल्लाह के हबीब की अमानतें हमारे पास नस्लन बादा नस्लिन थी वो सारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। सरकार गौस आजम को उसी तारीख से बगदाद की सरजमीन पर रहना पड़ा। सरकार गौस आजम जब रहने लगे तो आपने एक मदरसा कायम किया जिसको मदरसे कादरिया कहा जाता है, जो आज भी बगदाद की सरजमीन पर गौस आजम की खानकाह के पास मौजूद है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था तो मैंने ख्वाब देखा, हजरत मौलाए कायनात अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और फरमाते हैं, बेटा अब्दुल कादिर तुम बगदाद में वाज क्यों नहीं करते, तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो। मैंने अर्ज किया, हुजूर मैं कैसे तकरीर करूं, बगदाद की सरजमीन पर बड़े बड़े फुसहा और बुलगा हैं। आप फरमाते हैं, अच्छा मुंह खोलो। चुनांचे मैंने मुंह खोल दिया। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं कि 6 मरतबा हजरत अली ने मेरे मुंह में अपने लुआब को डाल दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा। आका फरमाते हैं, बेटा अब्दुल कादिर तुम वाज क्यों नहीं कहते हो। आपने अर्ज किया, हुजूर जद्दे अमजद, सरकार मैं वाज कैसे कहूं बड़े बड़े खतीबों और फसहा और बलगा के सामने। आप फरमाते हैं, अच्छा तुम अपने मुंह को खोलो। मैंने अपने मुंह को खोला तो सरकार ने मेरे मुंह में 7 मरतबा अपने लुआब शरीफ को डाला। उलमा फरमाते हैं कि 7 मरतबा सरकार ने अपने लुआब शरीफ को गौस पाक के मुंह में डाला और 6 मरतबा हजरत अली ने अपने लुआब शरीफ को मुंह में डाला। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मरतबा लुआब शरीफ डाल रहे हैं, मौलाए कायनात 6 मरतबा लुआब शरीफ डाल रहे हैं। और जब हजरत मौलाए कायनात ने अपने लुआब को गौस पाक के मुंह में डाला और 6 मरतबा डाला तो सरकार गौस आजम अर्ज करते हैं, हुजूर अल्लाह के हबीब ने तो 7 मरतबा डाला था, आप 6 ही मरतबा क्यों डाल रहे हैं। आप फरमाते हैं, ताकि अदद में बराबरी न होने पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हजरत अली कायनात हैं, अदद में रसूलुल्लाह से बराबरी न होने पाए, इतना अदद कर। अब बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, जब मैं बगदाद की सरजमीन पर जामा मस्जिद में वाज कहना शुरू किया तो पूरी मस्जिद भर जाती है। फिर मैंने दूसरे जुमा को वाज कहा तो मस्जिद के बाहर लोग आ गए। फिर मैंने वाज कहा तो पूरा ग्राउंड भर गया। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे वाज की महफिल में बैक वक्त 70 हजार का मजमा होता था। 400 लोग कलम और दावत लेकर के बैठते थे आपकी तकरीर को लिखने के लिए। गौस पाक का जब जलसा खत्म होता था तो 250-300 मुर्दे निकाले जाते थे, खौफे इलाही से लोग मर जाया करते थे। गौस पाक की तकरीर का असर होता था। गौस पाक बड़े पीर दस्तगीर का हाल ये था कि 70 हजार को खताब फरमाते थे और बैक वक्त आपकी आवाज सबको बराबर पहुंचती रहती थी। वो सरकार गौस पाक बड़े पीर दस्तगीर हैं। बड़े पीर को कहां कहां देखोगे, बड़े पीर मुफ्ती आजम इराक कहे जाने लगे। सरकार गौस पाक की बारगाह में कोई भी अपनी हाजत लेकर के जाता था तो वो रद्द नहीं फरमाया करते थे। दीनी हाजत हो या दुनियावी हाजत हो, जिस किस्म की भी जरूरत है सरकार गौस पाक की बारगाह में लेकर के हाजिर होते। सरकार गौस पाक पेश फरमा दिया करते थे और उसकी हाजतों को पूरी फरमा दिया करते थे। सरकार बड़े पीर हम बीमार हैं, दुआ फरमाते अच्छा हो जाता। हुजूर हमारी ये मुश्किल है, आप दुआ करते उसकी मुश्किल हल हो जाती। हुजूर हमारे लिए ये मामला है। एक मरतबा यही सरकार बड़े पीर गौसे आजम तशरीफ ले गए दरियाए दजला के किनारे। आपके साथ आपके चंद मोतकदीन हैं। एक बूढ़ी औरत बैठ करके ज़ारो कतार रो रही है। गौसे आजम ने पूछा, खातून क्यों रो रही हो। उन्होंने चेहरा
دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا یا شیخ مجھ سے نہ پوچھئے میں کیوں رو رہی ہوں, بڑی مصیبت میں ہوں, بڑی مصیبت میرے اوپر پڑی ہے, میں اس دریا کے کنارے آ کر کے بیٹھ کر کے رو لیتی ہوں تو تھوڑی سی مجھے ٹھارس بن جایا کرتی, ہائے میرا لال کہاں چلا گیا, میرا بچہ اسی دریا میں ڈوب گیا. بڑے پیر فرماتے ہیں آخر معاملہ کیا ہے بتاؤ تو. اس بوڑھی خاتون نے کہا یا شیخ آج سے 12 برس پہلے میرا بیٹا جوان تھا, دولہا بن کر کے گیا تھا اسی دریا کو پار کر کے شادی کرنے کے لیے, اور ادھر سے آ رہا تھا, دریا میں ایک طوفان اٹھا, اس طوفان کے نظر کشتی ہو گئی, کشتی ڈوب گئی, باراتی ڈوب گئے, میرا بچہ ڈوب گیا. اس مصیبت کو سوچتی ہوں تو بے قرار ہو جاتی ہوں, آ کر کے انہی دریا کی لہروں کو دیکھتی ہوں, بیٹھ کر رو لیا کرتی ہوں تو تھوڑی سی تسلی حاصل ہو جایا کرتی ہے. اس نے ایسے پردرد انداز میں غوث پاک کے پاس عرض کیا, اس کو کیا خبر یہ غوث ہیں, اس کو کیا خبر یہ مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا کون ہے میری مصیبت کو دور کرنے والا, کون ہے ہماری پریشانی میں کام آنے والا. تب تک آپ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اخرجوا من البحر, اے لوگوں سمندر سے نکلو. اتنا کہنا تھا کہ ڈوبی ہوئی کشتی 12 برس کی باہر نکل آتی ہے, دریا کی لہروں پر کشتی چل رہی ہے, آ رہے ہیں, یہ موت ہے یہ زندگی ہے. سرکار غوث اعظم پیر پیرم وہ ہیں, وہی نکلنے والا دولہا آج کبیر الدین دریائی دولہا کے نام سے مشہور ہے. پوری تاریخ اٹھا کر کے پڑھ ڈالو, یہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر کی کرامت سے زندہ ہوئے تھے. پیر کا حال تو یہ ہے پیارے. ایک خاتون حاضر ہوئی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اور عرض کرتی ہیں حضور میرے پاس کئی بچیاں ہیں, آپ دعا فرما دیجئے کوئی بچہ پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا جاؤ کہ تمہارے گھر بچے کی پیدائش ہوگی. چلی آئیں, پھر بچی کی پیدائش ہوئی. لوگوں نے جا کر کے عرض کیا حضور آپ نے جس خاتون کے تعلق سے کہا تھا اور وہ بھی سادات گھرانے کی, ان کے وہاں پھر بچی کی پیدائش ہوئی ہے. سرکار غوث پاک فرماتے جاؤ اس بچی کو لے آؤ. جب اس بچی کو لے کر کے بڑے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سرکار غوث اعظم کی گود میں ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے اس بچی کو دیا. بڑے پیر اپنی گود میں لیتے ہیں, ادھر سے ادھر گھمایا, فرمایا لو یہ بچہ ہے. اب لوگوں نے جب اس کو لے کر کے دیکھا تو دیا تو تھا بچی, اب لے رہے ہیں آپ کی گود سے تو واقعی ہے وہ بچہ. وہ ایسا بچہ ہے کہ تاریخ دہرا دوں, اسی بچے کا نام شیخ شہاب الدین سہروردی ہے. کیا بات, جن سے ایک سلسلہ سہروردیہ ہی چلا ہے. یہ پیدائشی طور پر بچی تھے, غوث اعظم کی دعا سے بچہ بنے ہیں. وہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرے میرا میرا, سرکار غوث اعظم کی نگاہ ہے. بڑے پیر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر سورج نکل رہا ہے وہاں پر میرا مرید ہو, اور جہاں پر سورج ڈوب رہا ہے میں وہاں پر ہوں. میرا مرید مجھے پکارے, اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کے سطر کو ڈھانپ دیتا ہوں. سطر ڈھانپنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کے صدقہ میں اپنے اس بندے کو ذلت و رسوائی سے بچا لیتا ہے. ورنہ یہاں سطر سے مراد کپڑے کا معاملہ نہیں ہے. یعنی سرکار غوث پاک کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ میرا چاہنے والا جہاں سورج نکل رہا ہے وہاں ہو, اور میں جہاں سورج ڈوب رہا ہے وہاں رہوں, وہاں سے وہ مجھ کو پکارے ذلیل و رسوا ہونے والا ہو تو میں بچا لیتا ہوں, اس کے سطح کو ڈھانپ دیتا ہوں, اس کے عیب کو چھپا دیتا ہوں. وہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں. یہی سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں محو عبادت تھا کہ ندا آتی ہے عبد القادر کیا چاہتے ہو. میں نے عرض کیا پروردگار جو میں چاہتا ہوں تیرے علم میں ہے. پھر ندا آتی ہے عبد القادر کیا چاہتے ہو. میں نے عرض کیا مولا میری نیت جو ہے تیرے علم میں ہے. پھر ندا آتی ہے عبد القادر کیا چاہتے ہو. میں نے عرض کیا الہ العالمین جو میں ارادہ کر رہا ہوں وہ تیرے علم میں ہے. تب تک ندا آئی عبد القادر جا, میں نے تجھے وہ عطا کیا کہ تیرا نام لیوا جو بھی ہوگا اور تجھ سے محبت کرنے والا جو بھی ہوگا, جب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں مل جائے گی تب تک اسے میں موت نہیں دوں گا, وہ مر نہیں سکتا ہے. اللہ اللہ, یہ سرکار غوث اعظم کے چاہنے والے کا مرتبہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے بڑے پیر سے محبت کیا کرو اور بڑے پیر سے لگن رکھا کرو. بڑے پیر سے محبت کرنے والا مرنے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر کے مرتا ہے. اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب
बंदे का मन ला जंबाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। कितना बड़ा अच्छा मर्द मोमिन वो है, कितनी अच्छी उसकी जिंदगी है जिसको तौबा की तौफीक मिल जाए। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती आजम इराक बोले जा रहे हैं। आपको गौस पाक कब से कहा जाने लगा? आपकी दहिश और आपकी दाद, आपका लेन देन इतना मशहूर हुआ कि कोई गरीब, कोई भी जरूरतमंद आपके दरवाजे से महरूम नहीं वापस जाता था, तो सारे लोग आपको गौस कहना शुरू कर दिए। गौस का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा देने वाला। अलगौस मस्तर है, उलमा समझेंगे, जिसका मतलब होता है मदद करने वाला, लेकिन कभी कभी मस्तर फाइल के माना में इस्तेमाल किया जाता है। अब जब यहां किसी की तरफ गौस कह दिया गया और मस्तर को अलम की तरफ लेकर के निस्बत इसकी जाई गई, तो अब यहां माना हो रहा है बहुत ज्यादा मदद करने वाला। सरकार गौसे आजम हर मोड़ पर मदद फरमा रहे हैं। सरकार गौसे आजम एक मर्तबा अपनी खानकाह में तकरीर कर रहे थे और सरकार के मेराज शरीफ को बयान फरमा रहे थे, बड़े पीर दस्तगीर। तब तक एक यहूदी पहुंच गया, वो खड़े होकर के सुनने लगा। सरकार गौसे आजम बयान फरमा रहे थे कि हमारे सरकार की मेराज हुई और मेरे आका इतने वक्त में अर्श आजम पर गए, लामका में गए, जन्नत देखा, दोजख देखा, ये देखा, वो देखा, सारी कैफियत आप बयान फरमाते चले आ रहे हैं। आप फरमाते हैं इतने वक्त में गए कि जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। उसने कहा यह बात तो समझ ही में नहीं आती है, एक इंसान इतने टाइम में अर्श पर चला जाए, लामका में चला जाए, जन्नत देख ले, दोजख देख ले, बैतुल मुकद्दस देख ले, चलो ये सब लायानी बातें हैं, मुसलमानों का अजीब हाल है। वो यहूदी ये कह करके अपनी महफिल से भाग आया। रास्ते में आ रहा था, मछली खरीद लिया, ले गया अपनी बेगम को दिया। बेगम कहा? हाँ। कहा ये मछली ले लो और इसको तैयार करो। कहा ठीक है, ये सूत है, इतनी सूत काट लूं, उसके बाद मैं मछली तैयार कर देती हूँ। आप कहीं और जाएंगे? कहा जाना तो नहीं था, लेकिन अगर तुम्हें फुर्सत नहीं है तो मेरी नियत है, लाओ मैं दरियाए दजला में जाऊं, कराओ। चुनांचे वो गुस्ल करने के लिए चल पड़ा और गया, कपड़े उतारा। जैसे दरिया में गर्मी शिद्दत की पड़ रही थी, डुबकी लगाया और डुबकी लगाकर बाहर निकलता है तो अब देखता है ना वो दरिया है, ना वो मेरा कपड़ा है, ना वो पाट है, ना वो धार है, ना वो मैं हूं। एक आदमी से एक लड़की बन चुका हूं। अब यही सोच रहा है, महवे हैरत है कि तब तक एक शहजादा घोड़े पर सवार होकर के आया और अपने घोड़े को वहीं डाल दिया पानी पीने के लिए। उसने देखा कि दरिया में थोड़ी दूर पर बहुत हसीन जमील एक लड़की है। उसको कहा बाहर आ जाओ। उसने कहा पहले कपड़े भेजो अपने, मैं सतर को छुपा लूं। इसने अपनी चादर को फेंक दिया, सतर को छुपाई, बाहर आ गई, अपने घोड़े पर बैठाया, अपने महल में ले गया, रानी बना करके रखा, बच्चे पैदा हुए, निकाह किया, क्या क्या मामला हुआ। एक मर्तबा फिर उसने सोचा लाओ चलो दरिया में सफर, दरिया में गुस्ल कराऊं। आकर के अपने कपड़े को उतार दिया। उतारने के बाद दरिया में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद जब सर बाहर निकाला तो देखा वही दरिया है, वही मेरा कपड़ा है, वही मैं हूं। ये मामला सारा क्या है? अच्छा भूले पड़ जाता है, सोचने लगता है, अक्ल जवाब दे गई है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। दरिया से निकल करके कपड़ा पहना और पहन करके आकर के पहुंचा तो देखता है कि मछली उसी तरह तड़प रही है, मेरी बीवी उसी तरह से सूत काट रही है। कहा बेगम अभी तुमने मछली नहीं तैयार की? कहा तुम रास्ते से तो नहीं लौट आए हो? कहा बेगम रास्ते से नहीं लौट करके आया हूं, बेगम बन चुका हूं, बच्चे जन चुका हूं, रानी बन करके महल में रह चुका हूं। कहा ये क्या पागलपन की बात कर रहे हो? अरे कहा बेगम उठो तो अपनी बीवी को लिया। जब सरकार गौस पाक की बारगाह में पहुंचा तो देखा अभी वही वाकया बयान फरमा रहे हैं। बड़े पीर ने फरमाया जो सरकार के मेराज को समझना चाहे वो यहूदी से समझ ले। उसने कहा सरकार मेराज बाद में समझाइएगा, मुझे दामने करम में लेकर के इस्लाम का कलमा पेश फरमा दीजिए। इस्लाम का कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया। वो सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा हैं। कहां कहां गौसे आजम को देखोगे, जिस मोड़ पर गौसे आजम को देखो बेमिसाल देखोगे। गौसे आजम की सुबह बेमिसाल है, गौसे आजम की शान बेमिसाल है, गौसे आजम की इबादत बेमिसाल है, गौसे आजम का रहना चाहना बेमिसाल है, गौसे आजम की दादो दहिश बेमिसाल है, गौसे आजम का लेन देन बेमिसाल है, गौसे आजम का इल्म बेमिसाल है, गौसे आजम का कर्म बेमिसाल है। गौसे आजम को कोई पुकार करके तो देखे गौसे आजम कहां कहां काम आ रहे हैं। खुदा की कसम किसी भी मोड़ पर गौस का पुकारने वाला महरूम नहीं रहता है। अरे सरकार गौसे आजम तो ऐसे हैं खुदा की कसम। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक खादिम थे जिनका नाम हजरत अली अरबी है और हजरत अली अरबी रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 60 बरस की हो गई थी।
बड़े पीर दस्तगीर से एक रोज अर्ज करते हैं, रोने लगे। आपने फरमाया क्या बात है? अर्ज करते हैं हुजूर मैं बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे की कोई लाठी नहीं है, मेरे घर में कोई चिराग नहीं है, आप दुआ फरमा दीजिए अल्लाह मुझे कोई औलाद अता फरमा दे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं जाओ, मेरी पुश्त में मेरी आखिरी औलाद थी, मेरा आखिरी बेटा था, आओ तुम इधर से आओ, अपनी पुश्त को मेरी पुश्त से मिला दो। चुनांचे हजरत अली अरबी ने अपनी पीठ को गौसे आजम की पीठ से मस कर दिया। आप फरमाते हैं जाओ बच्चा मैंने तुझे दे दिया और तेरे घर बच्चा पैदा होगा, उसका नाम मोहम्मद मुहियुद्दीन रखना, वो अल्लाह का बहुत बड़ा वली होगा। चुनांचे हजरत अली अरबी आए, उनके वहां बच्चे की वलादत हुई, उन्हीं का नाम रखा गया मोहम्मद मुहियुद्दीन, जिनका लक़ब इब्ने अरबी है। आज भी इब्ने अरबी की पेशीन गोइयां मशहूर हैं, जो कयामत तक होने वाली बहुत सारी चीजों की आपने निशानदेही फरमाई है, वो हजरत इब्ने अरबी हैं, जो सरकार गौसे आजम की दुआ से पैदा हो रहे हैं। और बड़े पीर फरमाते हैं इनका नाम मोहम्मद रखना, इनका नाम मुहियुद्दीन रखना, मेरे नाम पर रखना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा वली होगा। मैं आपसे पूछता हूं ए मुसलमानों, सरकार गौसे आजम की अता का हाल यह है तो रसूलुल्लाह की अता का हाल क्या होगा? जब वली अल्लाह इस तरह अता फरमा सकते हैं तो रसूलुल्लाह के करम की बारिश कैसी होगी? इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के